Hello, class third students. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have recited that poem again and also did the warm up activity of that poem. So now let's move into the new chapter, that is chapter 8, Value of Time. Now before starting this chapter, we're going to do some warm up activity. Circle the activities you usually do to keep yourself fit and healthy. So you have to circle the activity which you do to keep yourself fit and healthy. First one is cricket. By playing cricket, one remain fit and healthy. So you have to circle there. Next one is jogging. Yes, jogging is also good for body. You have to circle there. Next one is skipping. Skipping is also good. You have to circle there. Football is also good. Circle it. Cycling is also good. Skating is also good. Badminton, swimming and running is also good. So all these activities are good for you as it make you fit and healthy. Now let's start the chapter. Let's start the story. In a village of Porbandar, there was a little boy called Mohandas. He was a shy boy who did not have many friends. He preferred books to playing with boys. He was also a good student. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है पोरबंदर और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का रहता है जिसका नाम है मोहनदास। और ये जो मोहनदास है काफ़ी ज़्यादा शर्माता है, ये शर्मीला लड़का है जिसके इतने काफ़ी दोस्त नहीं हैं, बहुत ही कम दोस्त हैं या फिर वो दोस्त ज़्यादा मतलब उनसे मिलना भी पसंद नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा शाई फील करता है। तो वो बुक्स पढ़ना पसंद करता है इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द बॉयज़ विद अदर बॉयज़। सो वो क्या है, वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत ही गुड स्टूडेंट है। Mohandas was a studious type boy. He did not like exercise and never took part in any sport and game. He thought that going to school meant only studying. तो मोहनदास जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टडियस टाइप ऑफ बॉय है, ओके, यानी कि वो बहुत पढ़ाकू टाइप ऑफ लड़का है और वो उसे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है और वो कभी भी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेता था क्योंकि उसका मतलब स्कूल जाने का मतलब यही होता था कि स्कूल जाना है तो इसका मतलब है पढ़ना, तो स्कूल उसके लिए क्या था, सिर्फ ओनली स्टडिंग, ओके। When he grew up, he realized that playing games was also an important part of education. However, he loved nature and went on long walks that kept his body healthy and fit. जैसे जैसे मोहनदास बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको रियलाइज होता है कि जो गेम्स खेलना भी क्या होता है, एक अच्छी बात है, ओके। इससे हमारी बॉडी जो है फिट और हेल्दी रहती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन का, ओके, प्लेइंग गेम्स। तो पर तब भी मतलब इनको जो मोहनदास है इनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये नेचर में लॉन्ग वॉक करना पसंद करते हैं और इस लॉन्ग वॉक के थ्रू उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी भी रहती है और फिट भी रहती है। In the 7th standard, the headmaster of Mohandas School, Mr. Gimi, made gymnastics and cricket compulsory for all students. Mr. Gimi was very strict, but he was a good teacher. He believed that sports and games were very important for children. तो जब मोहनदास 7th क्लास में आ जाते हैं, 7th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, तो हेडमास्टर ऑफ मोहनदास स्कूल, जो हेडमास्टर है मोहनदास के स्कूल के, उनका नाम है मिस्टर गिमी, ओके। और मिस्टर गिमी ने अब एक रूल बना दिया, नया रूल, कि हर एक स्टूडेंट को जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट में पार्ट लेना कंपलसरी है, ओके। जो नहीं लेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। सो मिस्टर गिमी स्ट्रिक्ट तो है पर वो बहुत ही अच्छे टीचर है। सो वो बिलीव करते हैं कि जो स्पोर्ट्स और गेम्स है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की, जैसे स्टडीज इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे स्पोर्ट्स और गेम्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। Now Mohandas was forced to attend these classes. He had to stay back in school after studies were over. Another reason why he disliked the additional class after school was that his father has been ill for quite some time. Mohandas loved his father and every day right after his school he used to run home to look after him. तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मोहनदास है उसको फोर्स किया गया है कि उसे अटेंड करना ही पड़ेगा ये दोनों स्पोर्ट्स क्लासेस को, तो उसे स्टे बैक करना पड़ता था, मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है पर उसके बाद भी उसे स्टे बैक करना होता था कि इन चीज़ों के लिए, गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और उसका दूसरा रीज़न क्या था इन चीज़ों को डिसलाइक करने का, वो ये था कि मोहनदास के जो पापा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई है नहीं, तो मोहनदास जो है वो चाहते हैं कि जल्दी से स्कूल की छुट्टी और मैं जल्दी से जाकर अपने पापा की देखभाल कर सकूँ, उनके साथ बातचीत कर सकूँ, ओके।
The sports period in the evening meant that he could not be there to look after his father. He attended the gymnastics and cricket classes unwillingly. अब sports period जो है वो शाम के समय होता है, तो उस समय अब वो वापस अपने घर तो नहीं जा सकता अपने पापा की देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो ही अटेंडेड द जिम्नास्टिक, तो वो उसे अटेंड करना ही पड़ता है जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट क्लासेस को, ठीक है, अनविलिंगली, यानी कि उसकी इच्छा नहीं पर तब भी उसे करना पड़ रहा है। One Saturday he had school in the morning and came home for lunch. In the afternoon he had to attend gymnastics at 4 o'clock. After having lunch, he stayed inside his father's room and looked after him. He did not realize it was nearing 4 o'clock. When he found out that he was late, he ran to school. अब एक दिन क्या होता है, सैटरडे को उनका जो स्कूल है वो मॉर्निंग का होता है, ओके। तो वो लंच टाइम में अपने घर की तरफ वापस आते हैं, और आफ्टरनून में जब वो लंच टाइम में आते हैं तो उन्हें बोला गया होता है कि आफ्टरनून में आपका ये जिम्नास्टिक क्लास होगा एट 4 o'clock, ओके, तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। सो वो लंच जैसे ही खा लेते हैं, वो कुछ देर अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने पापा का देखभाल करते हैं। तो ऐसे करने के चक्कर में 4 o'clock मतलब उन्हें रियलाइज ही होता है कि टाइम हो गया है करके उनके जिम्नास्टिक जाने के लिए, और उन्हें लगता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाता, जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाते हैं। However, he was too late. The class was over and the boys had gone to their home. अब वहाँ पर पता चलता है कि अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं मोहनदास, और क्लास तो कब की ओवर हो चुकी थी, और बॉयज़ जो और बाकी जो लड़के थे वो तो कब के अपने घर चले गए हैं। On Monday, Mohandas went to school feeling scared and guilty. Mr. Gimi wanted his students to be punctual and disciplined. When Mr. Gimi examined that Saturday attendance roll, he saw that Mohandas had missed the class. He called him to his office and asked him why he had been absent. Mohandas told him the truth, but the headmaster refused to believe him and ordered him to pay a fine. अब मंडे को क्या होता है कि मोहनदास जो है स्कूल जाता है, पर उनको बहुत डर भी लगता है और गिल्टी फील होता है। और मिस्टर गिमी जो है, क्योंकि मिस्टर गिमी चाहते हैं कि उनके हर एक स्टूडेंट जो है वो पंचुअल रहे और डिसिप्लिन में रहे। तो मिस्टर गिमी जब एग्जामिन करते हैं सैटरडे की अटेंडेंस को, तो वो देखते हैं कि अरे मोहनदास तो सैटरडे को आया ही नहीं, मतलब लेट हो गया था, उसने तो अपनी क्लास मिस कर ली। तो वो मोहनदास को ऑफिस एरिया में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम एब्सेंट क्यों हुए। मोहनदास जब सारी बातें सच सच बताते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली वो अच्छे बच्चे होते हैं, तो वो सच सच सारी बात बताते हैं, पर जो हेडमास्टर वो उन पे बिलीव नहीं करते, उल्टा वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें फाइन पे करना पड़ेगा। Mohandas was deeply hurt because he had been accused of telling a lie. He was a truthful boy, punctual because he had not been. He was a truthful boy who never lied. He realized that he had been careless about being punctual because he had not been sincere in taking part in gymnastics. He understood that punctual people are on time for everything, even if they do not like it. तो मोहनदास जो है अब उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, क्योंकि उनको एक्यूज किया गया है झूठ बोलने के लिए, जबकि उन्होंने तो पूरा सच बताया था, ठीक है। ही वॉज ट्रूथफुल दैट लाइक वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सच ही बताते थे। एंड उनको रियलाइज़ हुआ कि वो केयरलेस हो गए इस चीज़ को लेकर, पंचुअलिटी को लेकर, ओके, बिकॉज ही हैड नॉट बीन सिंसियर इन टेकिंग पार्ट इन जिम्नास्टिक, मतलब वो जिम्नास्टिक में उन्होंने पार्ट नहीं लिया, तो इसको लेकर वो पंचुअल नहीं थे, ठीक है। ही अंडरस्टूड दैट पंचुअल पीपल आर ऑन टाइम, मतलब वो समझ गए थे कि पंचुअल पीपल जो होते हैं वो हमेशा टाइम में होते हैं सब चीज़ों को लेकर। एंड इवन इफ दे डू नॉट लाइक इट, चाहे उनको पसंद ना हो और तब भी उनको टाइम पे आना है उस चीज़ को लेकर। मोहनदास डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट हिज टीचर्स, ही वांटेड टू रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, सो ही डिसाइडेड टू ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर एवरीथिंग। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट डे मोहनदास मिस्ड हिज क्लास और वाज लेट। He performed every work sincerely and truthfully. He remembered this lesson throughout his life. He lived a disciplined life and understood the value of time and punctuality. तो मोहनदास जो है अब वो नहीं चाहता कि वो किसी भी टीचर को डिसअपॉइंट करे, सो वो चाहता है कि वो सभी टीचर को रिस्पेक्ट करे। तो वो डिसाइड करता है कि वो हर जगह टाइम पे पहुंचेगा और हर चीज़ टाइम पे ही करेंगे। सो डैट वाज, अब वो दिन उनके लिए पहला और आखिरी दिन था जब वो लेट हो गए थे, जब उन्होंने अपनी क्लास को मिस कर दिया था, जिम्नास्टिक और क्रिकेट क्लास को। ही परफॉर्म एवरी वर्क, अब वो क्या करते हैं, वो हर एक वर्क को सिंसियरली परफॉर्म करते हैं, ट्रुथफुली परफॉर्म करते हैं, और वो हर एक लेसन को अपने माइंड पे रखते हैं कि मतलब क्योंकि वो उनकी लाइफ के लिए लेसन था, ठीक है। एंड वो ही लिव्ड अ डिसिप्लिन लाइफ, अब वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और हर एक काम को टाइमली करते हैं, और उनको अब अच्छे से पता चल गया कि क्या वैल्यू होती है टाइम की, ओके।
सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है? स्टोरी से आपको ये सीखने को मिला है कि हमें हमेशा टाइम पे ही अपने काम करने चाहिए, हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, क्योंकि टाइम पे करा हुआ जो काम होता है वो हमेशा फिर सक्सेसफुल भी हो जाता है. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड योर होमवर्क इज you have to reread the story and also do the warm up activity. Till then students, take care. Bye bye.